دنیا کا سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ اب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ یہ ہے سعودی عرب کا دا لائن۔ جب سے اس کا اعلان 2021 میں کیا گیا تھا، تب سے ہی بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا، کیا واقعی کچھ اتنا بڑا اور شاندار تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ ایک ایسا شہر جو 500 میٹر اونچا ہو اور 170 کلومیٹر تک صحرا میں پھیلا ہو۔ پھر جب پچھلے سال رپورٹس آئیں کہ اس پروجیکٹ کو بہت حد تک سکیل ڈاؤن کیا جا رہا ہے، تو اور بھی زیادہ لوگوں نے اس کے مستقبل پر شک کرنا شروع کر دیا۔ لیکن تازہ ترین ڈرون اور سیٹلائٹ امیجز نے ظاہر کیا ہے کہ تعمیراتی کام اب بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ تو آخر اب تک کیا تعمیر ہوا ہے، اور کیا یہ منصوبہ اب بھی 2030 تک مکمل ہونے کی راہ پر ہے؟ جو بات سب چھپا رہے ہیں وہ ہم دکھائیں گے، کیونکہ یہ ہے فیکٹس نیوز۔ اور آپ سب کا ویلکم ہے ہمیشہ کی طرح ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ شاید پہلے ہی دا لائن سے واقف ہوں گے۔ ہم اس پر پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ اس سے واقف نہیں ہیں تو یہاں ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ دا لائن شاید دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے ایمبیشیس منصوبہ ہے۔ یہ ایک عظیم الشان لینئر سٹی ہے جسے 500 میٹر اونچا بنایا جانا ہے، اور جو کل 170 کلومیٹر تک سعودی عرب کے صحرا میں پھیلی ہوگی۔ اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس انداز میں اپنے شہر بناتے ہیں اسے مکمل طور پر نئے انداز میں تخلیق کیا جائے۔ اس میں نہ کوئی کارز ہوں گی اور نہ ہی کوئی روڈز، اور یہ مکمل طور پر رینیویبل انرجی پر چلے گا۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو یہاں تقریباً 10 ملین لوگ رہائش رکھ سکیں گے۔ اس پروجیکٹ کی پوزیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ یہ شہری نظام کو زیادہ صاف، مؤثر اور سسٹینیبل بنا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ منصوبہ انتہائی کنٹروورشل بھی ہے، اور کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تھوڑا ڈائسٹوفین بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ دا لائن دراصل نیوم کا حصہ ہے، جو کہ ایک اور بھی میگا پروجیکٹ ہے جس نے اپنی فیوچرسٹک اور بعض اوقات پاگل پن والی منصوبہ بندیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں سرخیاں بٹوری ہوئی ہیں۔ اس میں ایک فلوٹنگ پورٹ سٹی، صحرا میں ایک ونٹر ریزورٹ اور ایک پوری کوسٹل ریجن شامل ہے جسے جدید ترین ٹورزم ڈیسٹینیشن بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں دا لائن اس پورے منصوبے کا مرکز ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جس نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔ جب اس پروجیکٹ کا پہلا اعلان 2021 میں ہوا تھا تو یہ سب کچھ اتنا ناقابل یقین لگا کہ جیسے یہ حقیقت بن ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم یہاں ایمانداری سے بات کریں تو آج بھی یہ منصوبہ اتنا ہی پاگل پن لگتا ہے جتنا یہ 4 سال پہلے لگتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ دا لائن کبھی بھی ان وائرل رینڈرز اور ویڈیو سے آگے نہیں بڑھے گا جو انٹرنیٹ پر گردش کر رہی تھی۔ لیکن اکتوبر 2022 تک جب نئی ڈرون فوٹیجز منظر عام پر آئیں تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ 170 کلومیٹر لمبے اس لینئر سٹی کی تعمیر حقیقت میں شروع ہو چکی تھی۔ بڑے پیمانے پر کھدائی کا کام جاری تھا، جو کہ صحرا کے بیچوں بیچ ایک وسیع خندق کی شکل میں ہو رہا تھا، اور وہ جگہ جہاں بعد میں دا لائن کی بنیادیں رکھی جانی تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ سیٹلائٹ امیجز نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ابتدا ہی سے پورے 170 کلومیٹر کا حصہ کھود رہے تھے۔ ڈرون فوٹیج میں کنسٹرکشن وہیکلز کے پورے بیڑے، سٹیگنگ ایریاز اور نئی بننے والی چھوٹی بستیاں بھی دکھائی دیں، جو کہ اس موجودہ راستے کے ساتھ ساتھ تیار کی جا رہی تھیں۔ یہ سب ترقیاتی کام وہ پہلی حقیقی نشانیاں تھیں جو یہ ثابت کرتی تھیں کہ سعودی عرب اپنے جرأت مندانہ خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ لیکن 2024 تک ایسی خبریں گردش کرنے لگیں کہ دا لائن کے اس منصوبے کو بہت حد تک چھوٹا کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے سکیل ڈاؤن کیا گیا وہ یہ تھی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، کیونکہ یہ بات آج سے 1 سال پرانی ہے جب سعودی گورنمنٹ نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ نیوم پروجیکٹ میں بننے والی دا لائن سٹی کو اب چھوٹی لمبائی کے ساتھ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں؟ اصل میں دا لائن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کیا یہ منصوبہ اب بھی زندہ ہے؟ آئیے ذرا ان تمام سوالوں کے جوابات تفصیل سے جانتے ہیں۔
इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब ज़रा वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। आइए ज़रा करीब से देखते हैं कि द लाइन के साथ असल में क्या हो रहा है। एक बड़ी डेवलपमेंट जो हमारी पिछली वीडियो के बाद द लाइन के कंस्ट्रक्शन में हुई वो थी नियोम के तवील अरसे से काम करने वाली CEO का अचानक मुस्ताफी होना। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल के मुताबिक इस अचानक अलहदगी की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। खुद नियोम की जानिब से भी इस अचानक तब्दीली की कोई वजाहत सामने नहीं आई। इसी दौरान इस मंसूबे में 2 दीगर सीनियर ओहदों पर भी अचानक तब्दीलियां की गईं और आवाम को कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये तमाम गैर मुतवक्का तब्दीलियां शायद द लाइन को डाउन स्केल करने के फैसले से जुड़ी हुई थीं। उस वक्त तक नियोम के ज्यादातर हिस्से पहले ही बजट से कहीं ज्यादा खर्च कर चुके थे और टाइम लाइन से बहुत पीछे थे। सऊदी अरब को कुछ बड़े फैसले लेने पड़े ताकि वो इन मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने की कोई उम्मीद रख सके। इसीलिए पुराने CEO की जगह एक ऐसे शख्स को मुकर्रर किया गया जो इस फंड को मैनेज करता है, जो पूरे नियोम मंसूबे को फाइनेंस कर रहा है, यानी एक ऐसा शख्स जो पहले ही मंसूबे के मालियाती पहलू से गहरी वाकफियत रखता था। यही नया फोकस शायद द लाइन को डाउन साइज करने का सबब बना। नियोम के हुकाम को गालबन अंदाजा हो गया था कि ओरिजिनल प्लान्स हद से ज्यादा महंगे और गैर हकीकी थे। अगरचा बाद में हुकाम ने वजाहत दी कि दरअसल ये उनका असल मंसूबा था। उनके मुताबिक मंसूबा हमेशा से यही था कि द लाइन को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कई दहाइयों में मुकम्मल किया जाएगा, और सच कहें तो शायद इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि ये माली और अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं कि 170 किलोमीटर लंबी लाइन को 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाए। और गालबन इसके बनाने वालों को ये बात शुरू से ही मालूम थी। ये बात वाज़ेह थी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड चाहे जितना भी बड़ा हो, ये फंड नियोम और द लाइन को अपने ओरिजिनल फॉर्म में मुकम्मल करने के लिए काफ़ी नहीं था। और सच तो ये है कि शायद कभी हो भी ना पाता, क्योंकि मौजूदा अंदाजों के मुताबिक मुकम्मल नियोम मंसूबे की टोटल कॉस्ट अब $8.8 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, $8.8 ट्रिलियन। जरा सोचें इस अदद के बारे में। ये सऊदी अरब की कुल GDP से 8 गुना ज्यादा है। तो ये कहना गलत ना होगा कि द लाइन के ओरिजिनल प्लान्स शायद मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस मिनी लाइन की, तो इस पर आखिर क्या प्रोग्रेस हुई है। मिनी लाइन सऊदी अरब के उस इलाके में बनाई जा सकती है जिसे गाल कहा जाता है। हमने ये नोट किया कि एक्सकवेशन साइट के एक मखसूस हिस्से की गहराई बाकी इर्द गिर्द के मुकाबले में खासी ज्यादा थी, और दिलचस्प बात यह है कि इस हिस्से की लंबाई वही थी जो मिनी लाइन की बताई जा रही थी। मुख्तलिफ ड्रोन फुटेजेस और कंस्ट्रक्शन एनिमेशंस का बगौर तज्जिया करने के बाद अब हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि यही जगह द लाइन के पहले मरहले के लिए मुंतखब की गई है। इस फर्स्ट फेज में एक हिडन मैरीना भी शामिल होगी और साथ ही नियोम स्टेडियम भी, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2034 के एक वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल होगा। फेज 1 में 3 ऐसे मॉड्यूल शामिल होंगे जो कि कम से कम 800 मीटर लंबे और 500 मीटर ऊंचे होंगे। मुझे मालूम है कि ये मंसूबा स्केल डाउन वर्जन समझा जा रहा है, लेकिन इस साइज पर भी ये मंसूबा अब भी खासा पागलपन लगता है। अब यहाँ एक बात और सामने निकल कर आती है। पहले ये कहा गया था कि जो हिडन मेरीना है वो गल्फ ऑफ अकाबा के करीब बनाई जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। इसके बजाय ये दरअसल उसी गाल एरिया के करीब तामीर की जाएगी जिसका हमने पहले जिक्र किया था, और ये मुकम्मल तौर पर इंसान के बनाए हुए ढांचे पर मुश्तमिल होगी। द लाइन के इस हिस्से पर एक्सकवेशन का काम दरअसल 2023 से जारी है। आज की सैटेलाइट इमेजेस से जाहिर होता है कि ये जगह दर्जनों ट्रक से भरी हुई हैं जो मुसलसल पत्थर, मिट्टी और रेत को एक्सकवेशन साइट से बाहर ले जा रही हैं। अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो हमें वो आर्टिफिशियल वाटर वे भी नजर आती है जो मुस्तकबिल में मैरीना को साहिल तक ले जाएगी। इसके अलावा अप्रैल 2025 में ली गई ड्रोन फुटेज हमें फेज 1 के 3 मॉड्यूल्स में होने वाली तरक्की की करीबी झलक दिखाती है। मॉड्यूल 45 पर खासी पेशरफ्त हो चुकी है और कंक्रीट वर्क का आगाज भी हो चुका है। पाइलिंग मशीन्स पूरे इलाके में देखी जा सकती हैं।
जो ये जाहिर करती हैं कि एक्सकवेशन अब एक मरहले तक पहुंच चुकी है। मॉड्यूल 46 पर भी सबसे ज्यादा काम हुआ है, क्योंकि ये वो जगह है जहां हिडन मैरीना पूरी स्ट्रक्चर को काटते हुए गुजरेगी। यही वो जगह भी है जहां न्योम स्टेडियम तामीर किया जाएगा, जमीन से तकरीबन 350 मीटर की बुलंदी पर। जरा तसव्वुर करें, वर्ल्ड कप का एक वेन्यू जो किसी स्काई स्क्रेपर के अंदर 350 मीटर ऊंचाई पर बनाया जाएगा, इसे क्रेजी कहना शायद कम होगा। दुनिया की सबसे बड़ी पाइलिंग एक्सरसाइज भी यहीं पर हो रही है, क्योंकि सिर्फ फेज 1 के लिए ही 16,000 से ज्यादा इंडिविजुअल पाइल्स लगाए जा चुके हैं। अगर मुवाजना करें तो दुबई की बुर्ज खलीफा को मुकम्मल बनाने के लिए सिर्फ 192 पाइल्स दरकार थे। आखिर में मॉड्यूल 47 इन तीनों में सबसे कम तरक्की याफ्ता दिखाई देता है, जहां एक्सकवेशन अभी इब्तिदाई मराहिल में है। इन 3 मरकजी मॉड्यूल्स के अलावा एक और अहम डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन साइट पर डी वाटरिंग सिस्टम का कयाम है। ये एक वसी निज़ाम है जिसमें पंप्स, चैनल्स, रिजर्वायर्स और पाइप्स शामिल हैं, जो एक्सकवेशन ट्रेंच में पानी के दाखिले को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि बुनियादों पर काम शुरू हो सके। ये पूरा निज़ाम गूगल मैप्स पर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जहां ये मुकम्मल तौर पर ट्रेस किया जा सकता है कि पानी एक्सकवेशन साइट से निकालकर किस तरह रेड सी तक पहुंचाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के सीईओ ने भी अप्रैल में ली गई कुछ तस्वीर आवाम के साथ शेयर की, जिनमें द लाइन की तरक्की और न्योम के मुख्तलिफ हिस्से देखे जा सकते हैं। इनमें से एक तस्वीर में हमें एक लंबी कंक्रीट ट्रेंच दिखाई देती है, जिसके दरमियान में कुछ पाइप्स जाती हुई दिखाई देती हैं। कुछ ऑनलाइन सोर्सेज ने दावा किया है कि ये तस्वीर द लाइन की बुनियादों पर कंक्रीट वर्क के आगाज की है, लेकिन मजीद तहकीक और पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये दरअसल डी वाटरिंग सिस्टम की वाटर पाइप्स हैं। एक और सेट तस्वीर में हमें न्योम के ऑक्सागोन फ्लोटिंग पोर्ट सिटी की तरक्की भी दिखाई गई है। इसका हार्बर अब अपना वाज़ेह खाका इख्तियार कर रहा है और इसके गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी शुरू हो चुकी है। मजीद तस्वीर में कंस्ट्रक्शन साइट के मुख्तलिफ एंगल्स, करीबी विंड फार्म और एक नया वर्कर कैंप दिखाया गया है, जो द लाइन के जुनूब में वाक़या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि द लाइन का फ्यूचर क्या होगा। अब जब हमने द लाइन की हालिया तरक्की देख ली है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का द लाइन के मुस्तकबिल पर क्या असर होगा। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि 170 किलोमीटर लंबे लीनियर सिटी को 2030 तक मुकम्मल करने का जो असल ख्वाब था, वो अब मुकम्मल तौर पर गैर हकीकत पसंदाना बन चुका है। सऊदी अरब अभी भी द लाइन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अब एक बहुत ही महदूद और हकीकत के करीब स्केल पर। हालांकि सच ये है कि ये मिनी लाइन भी अपनी जगह एक ऐसी इंजीनियरिंग चैलेंज है जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। हम अभी बात कर रहे हैं एक 500 मीटर ऊंची स्ट्रक्चर की, जो मुसलसल 2 किलोमीटर तक तामीर की जाएगी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे 2 कितारों में 40 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को साथ साथ खड़ा किया जाए। तो चाहे असल विजन का ये 2% ही क्यों ना हो, इसका पहला फेज भी मुकम्मल करने के लिए बेशुमार सरमाया और मेहनत दरकार होगी। कुछ माहिरीन का तो ये भी कहना है कि सिर्फ ये स्केल डाउन वर्जन भी, यानी सिर्फ 2.4 किलोमीटर तकरीबन 370 बिलियन डॉलर तक खर्च करवा सकता है। लेकिन अगर तमाम मुश्किलात के बावजूद सऊदी अरब वाकई ये कर पाता है, तो भी एक बहुत बड़ा मसला बाकी रहता है। वो आखिर किस तरह 3 लाख लोगों को इस लाइन में आकर बसने पर आमादा करेगा। अगर वो किसी वजह से वाकई ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो तब भी बाकी द लाइन के मुकम्मल होने की कोई हकीकत पसंदाना उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आपका क्या ख्याल है, क्या वो ये मिनी लाइन मुकम्मल कर पाएंगे, और क्या हम कभी 170 किलोमीटर तवील मुकम्मल द लाइन बनते हुए देख सकेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमेशा की तरह वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। आपसे हमारी अगली किसी ऐसी ही शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।